हाय एवरीवन। ऑल ज्ञान के परिवार में आपका स्वागत है। मेरा नाम किरण है एंड आई एम द होस्ट and Avnendra Rai is also the host. We are here to just interact with people who are हम interact करना चाहते हैं लोगों से जो आर्टिस्ट हैं, जो कि पोएम करते हैं या स्टोरी टेलिंग करते हैं। बेसिकली जो ऑल कैन है वो एक ब्लॉग वेबसाइट है जिसमें आर्टिकल्स आपको प्रोवाइडेड है टेक्नोलॉजी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। अगर आप जाएंगे वहां पे तो आपको पता चलेगा ऑल कैन के बारे में। और ऑल कैन का हमारा टैगलाइन है पीपल डाई बट थॉट नेवर डाइज। सो आगे आपको अवनींद्र बताएंगे। यस अवनींद्र। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार अमृत जी। आपका स्वागत है आल ज्ञान में। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। बस आप लोग के अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ। तो मैं एक कविता से शुरुआत कर देता हूँ, फिर आप लोग फिर स्टार्ट करिएगा। मेरी आवाज सबको आ रही है? जी अनंत जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। ठीक है सर, मैं स्टार्ट करता हूँ। वो किस्तों में मोहब्बत करती थी, वो किस्तों में मोहब्बत करती थी, हम तामुर उसके कर्जदार निकले। उसने छोड़ दी दिलो जमी मेरी, उसने छोड़ दी दिलो जमी मेरी, फिर भी कागजों पे उसके ही नाम निकले। इंटरेस्टिंग। यस, कुछ कहना है और? नहीं, फिर अभी लोग परफॉर्मेंस इन लोगों की देखा जाए, उसके बाद बीच में अगर मैं इंटरटेनमेंट करता रहूंगा बीच में, तब तक ओके। आप स्टार्ट करिए। Who wants to perform first? गेट नहीं बंद हो पाता। Hi everyone, is it audible to all of you? Yes, I can hear Yes, you. Kiran, yes. Okay, so who wants to perform first? I would like to go, Kiran. Okay, Pranita. Pranita. Yes, please, Pranita. Yes. So I will share, I'll say a poem, and everyone should relate with it because it is about the lockdown that we all experienced. Can you please So open your video? Can you please share your video? yeah. Actually, I'm using my phone and the same screen I'm using to read the poem. That's why I think it got disconnected. Okay, no problem. Otherwise, yeah. So I'll just take you through the poem. Am I audible and clear? Yeah, Okay, Pranita, we here can it hear you. goes. Okay, here it goes. It's not the same bright. One second. It's my request. Yeah. Please mute all your audio. Everyone, please mute. Because अगर वो कुछ कहेंगे ना तो प्रॉब्लम आएगी सबको सुनने में. Yes, please, Pranita. Okay, thanks, Kiran. I'll start. It's not the same bright morning, coffee and hustle of our choice. The glorious painted sunset, we rarely care to rejoice. Saving economy, ensuring survival in that ambient, boring light. Working hard to live better, a struggle with no end in sight. Here we are in a prison we once called home. Paranoid, so clueless, future a hollow dome. Few with their families, happy but exposed to all flaws. Few in distant towns alone, managing profession and shores. Fighting a war, becoming history, the final stroke yet to be crowned. Internet as oxygen for the season, humor to deal with mental breakdown. Believing this too shall pass, like those times in the past. We will be back on the streets again with no fear lingering in our hearts. A bit more cognizant, a bit more empathetic, a bit more appreciative of the freedom we have. I don't know if we needed this pause to slow down, relax, contemplate, to spend some time with our near ones, to realize we don't really own our fate. All I know is we will get through this. We just need to care and do our bit.
An ounce of hope, an ounce of love, the world will survive like it always did. Thank you. Wow, very nice, बहुत अच्छा था, Pranita. Thank you so much. बहुत अच्छा था, बहुत। Now, who wants to perform? Himanshu, do you want? Okay, Roshni, do you want to perform? Kiran, I will go ahead. Harish here. Harish, okay, Harish, please. So, आज के इस महफिल से जुड़े सभी दोस्तों को नमस्कार। तो अभी प्रणीता जी ने इंग्लिश में एक पोएट्री सुनाई, बहुत बढ़िया प्रणीता जी। तो अब मैं हिंदी पे आता हूँ। हिंदी में शुरुआत करता हूँ चंद पंक्तियों के साथ कि है जो उनको हमसे मोहब्बत नजरें हमारी पढ़ लेंगे, कि है जो उनको हमसे मोहब्बत नजरें हमारी पढ़ लेंगे, हुई जो एक तरफा यारो बताकर भी क्या कर लेंगे, कि है जो उनको हमसे मोहब्बत नजरें हमारी पढ़ लेंगे, हुई जो एक तरफा तो बताकर भी क्या कर लेंगे। और इश्क होता है रूह से रूह का मिलन यारो, कि इश्क होता है रूह से रूह का मिलन यारो, हम वो नहीं जो जबरन किसी दिल में घर कर लेंगे, जो जबरन किसी दिल में घर कर लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। Nice. बहुत शुक्रिया। तब एक मेरी रचना है, ज्यादातर जो मेरी रचनाएं होती हैं वो हमारे समाज में इर्द गिर्द में क्या हो रही हैं, हम लोग क्या फील करते हैं, उन सब चीजों से जुड़ी होती है। तो उन्हीं से जुड़ी एक रचना है तो कि कोई किसी के गम में शामिल नहीं होता, कि कोई किसी के गम में शामिल नहीं होता, हर शख्स हंसी जिंदगी के काबिल नहीं होता, कि कोई किसी के गम में शामिल नहीं होता, हर शख्स हंसी जिंदगी के काबिल नहीं होता। और मुलाकात खुद की खुद से, मुलाकात खुद की खुद से काम मशक्कत का है, कि मुलाकात खुद की खुद से काम मशक्कत का है। यूं औरों की बुराई करने से कुछ हासिल नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता। क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया रन जी। और ख्वाब कुछ रह गए अधूरे तो जिंदगी से गिला क्या, कि ख्वाब कुछ रह गए अधूरे तो जिंदगी से गिला क्या, हर कश्ती के नसीब में यारो साहिल नहीं होता, साहिल नहीं होता। और क्यों बेवजह तोलते हो इंसान को जानवर से, कि क्यों बेवजह तोलते हो इंसान को जानवर से, इंसान के माफिक जानवर जाहिल नहीं होता, जाहिल क्या नहीं बात, होता। क्या बात, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया आनंद जी। और इस रचना की अंतिम दो पंक्तियां कि जनरली लोगों की आदत होती है, कोई अगर किसी चीज में फेल हो जाता है तो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यार उस वजह से ये चीज नहीं हुई या उसने टांग अड़ा दी। तो उसी तरह की दोष गैरों को न दे अपनी नाकामियों का, कि दोष गैरों को न दे अपनी नाकामियों का, अरमानों का अपने सिवा कोई कातिल नहीं होता, कोई कातिल नहीं होता।
क्या बात है, Beautiful. दिल को छू लिया, क्या बात वेरी नाइस, वेरी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर समय है तो मैं आगे और सुना सकता हूँ, हाँ हाँ नहीं तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। बाद में देखते हैं। नहीं नहीं, सुनाइए सुनाइए नहीं आप। नहीं, आप सुनाइए। ओके, तो इसी तर्ज पे पहले कल ही मैंने 4 लाइनें लिखी थी, तो वो 4 लाइनें सुनाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से थी कि पहचान लोगे जो तुम मुझे, पहचान लोगे जो तुम मुझे, फिर न पागल कहोगे। कि पहचान लोगे जो तुम मुझे, फिर न पागल कहोगे। धुएं के उस गुबार को फिर न तुम बादल कहोगे। कि पहचान लोगे जो तुम मुझे, फिर न पागल कहोगे। धुएं के हर गुबार को फिर न बादल कहोगे। और समझ लिया जो तुमने फर्क नजर और नजरिए का। नजर सबके पास होती है, नजरिया बहुत कम लोगों के पास होता है। हाँ, कि समझ लिया जो तुमने फर्क नजर और नजरिए का। हर काली लकीर को तुम फिर न काजल कहोगे, फिर न काजल कहोगे। क्या बात। तो ये अभी हो चुके, ये रचना अभी पूर्ण नहीं हुई है, तो ये 4 पंक्तियां उसकी लिखी थी, तो सोचा आप लोगों के साथ साझा करता हूं। तो अभी एक और रचना है, तो कुछ इस तरीके से कि मैं जिंदगी को आज खोने चला गया। कि मैं जिंदगी को आज खोने चला गया। रोना आ रहा था, रोने चला गया। कि मैं जिंदगी को आज खोने चला गया। रोना आ रहा था, रोने चला गया। और मुलाकात खुद की खुद से न हुई मगर। कि मुलाकात खुद की खुद से न हुई मगर। मैं किसी और का होने चला गया, मैं किसी और का होने चला गया। और बोझ जिम्मेवारियों का सह न पाया जब। कि बोझ जिम्मेवारियों का सह न पाया जब। जिंदा अपनी लाश को ढोने चला गया, ढोने चला गया। अंतिम 2 पंक्तियां कुछ इस तरीके से कि मिली नाकामी जो राहे जिंदगी में। कि मिली नाकामी जो राहे जिंदगी में। मैं बस माँ के आंचल में सोने चला गया, माँ के आंचल में सोने चला गया। क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 2 Nice. पंक्तियों के साथ, 2 बहुत ही पंक्तियों के अच्छा था, साथ मैं आज का। जी किरण जी, कुछ कह रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो 2 पंक्तियों के साथ फिलहाल के लिए विराम चाहूंगा। बाकी अगर बाद में लोग नहीं जुड़ पाते हैं, कम होते हैं, अगर चाहे तो मैं बाद में फिर पढ़ सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए 2 पंक्तियां कुछ इस तरीके से कि सच और झूठ में फर्क महज इतना सा। कि सच और झूठ में फर्क महज इतना सा। झूठ रहता लिबास में, सच रहता नंगा सा, सच रहता नंगा सा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस। ओके, बहुत ही अच्छा था हरीश, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया किरण जी। और कौन परफॉर्म करना चाहेगा? हरीश जी, बढ़िया थी आपकी शायरी। बहुत बहुत शुक्रिया। किसने बोला ये बात? मयूर? मयूर, यस मैम। ओके मयूर। ओके, मैं बोलूं? यस यस प्लीज। एक्चुअली मेरा ऑडियो ही ये ऑन नहीं हो रहा था, कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैं सिर्फ देख पा रहा था। हरीश जी के सिर्फ मुझे होठ ऐसे दिख रहे थे, शायरी सुनाई नहीं दे रही थी।
आखिरी में सुनाई दी तो बढ़िया लगा। कोई बात मैं नहीं मयूर स्टैंड जी, अप फिर कॉमेडियन कनेक्ट करेंगे। हूँ। जी जी, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ सर जी। अरे थोड़ा मोड़ा अभी जस्ट स्टार्ट किया है, बस अरे, कहीं ना कहीं से तो अभी। शुरुआत होती है मयूर भाई। जी जी, अभी और किरण मैडम ने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है। थैंक यू। चलो चलो, पहली चलिए। बात, मेरा मयूर निकम नाम है, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। आप हरीश जी, आप कहाँ से हो? मयूर भाई, मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, लेकिन मैं फिलहाल जॉब हैदराबाद में कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अरे वाह। तो फिर आप हैदराबाद से हरियाणा अप डाउन करते हैं या खुद का जेट ले लिया आपने? भाई बस जेट दिलवा दो आप, आपकी दुआ। अरे जी, लिखा है जल्दी दिलवाएंगे मोदी जी को आपको। लेटर, मैं मोदी जी को लेटर लिखा है, जल्द से जल्द सैंक्शन हो जाएगा। अब ये कोरोना के बाद कर देंगे वो देखो सैंक्शन। भाई, देखो हाँ पॉलिटिक्स नाइस, मत घुसाओ बीच में अब। कॉन्ग्रेचुलेशन मयूर। अब मयूर, आपको जी, रोकना चाहूंगा मैं। अब आपने पॉलिटिक्स घुसा दी है तो फिर मैं चार नहीं। लाइनें बोले बिना नहीं रहूंगा। ठीक है, पहले मेरा ठीक है। चलिए, कंप्लीट कर बोलिए देता बोलिए। हूँ आपसे। नहीं ठीक है, नहीं, अभी अब आपने आऊंगा मैं। पॉलिटिक्स घुसा दिए। नहीं नहीं मयूर भाई, पॉलिटिक्स आप बीच में हाँ ले आए हो तो अब चार हाँ हाँ, पंक्तियां सुन भाई लीजिए। मैं फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रम्प का प्रचार कर रहा हूँ, मैं यूएसए में हूँ फिलहाल, तो उनका कर रहा हूँ, पर मैडम के लिए मैं आया हूँ इंडिया में, खास अरे भाई, वर्चुअल आपको माइक जिसका के लिए। मन करे आप उसका प्रचार कीजिए, कौन रोक सकता है। आजादी है सबको। वो अलग बात है कि बोलने की आजादी है, लेकिन बाद में फतवे फरमान निकलते रहेंगे किसी भी बात में। हाँ, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो कहना ऐसा है कि सब ऑल ज्ञान वर्चुअल ओपन माइक को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। किरण मैडम और थैंक सर यू, जी के तरफ से मैं बोल रहा हूँ। शुक्रिया थैंक ऐसा ना यू। आपको। होने चाहिए कि वीडियो वीडियो बनाने वाले 10 लोग और 5 सब्सक्राइबर, 3 व्यूज और 2 डिसलाइक्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा चलो, कभी हुआ शुरुआत तो नहीं है होगी, अभी अगर तक कम तो करो तो फिलहाल। क्या होगा। बाकी आप लोग का नहीं नहीं, सपोर्ट अच्छा रहेगा तो अच्छा रहेगा। अभी तक तो फिलहाल अच्छा है। डिसलाइक नहीं मिला है। मयूर भाई, नहीं, गलत सब्सक्राइबर्स जगह पर। अच्छा है ना। अगर आप चेक मयूर भाई, करोगे तो गलत जगह प्रचार हाँ। कर रहे हो। ये अपना जो आप अभी स्टार्ट जुड़े नहीं हो, करो। नहीं, ये ये नहीं नहीं, ये जो ये अभी जुड़े यूट्यूब पे हुए हैं ये आएगा तो ना। ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। जो ऑलरेडी जुड़े हुए बराबर हैं है। अभी आज की महफिल हाँ में, वो हाँ, तो जुड़ चुके हैं। नहीं आपका प्रचार दूसरे नहीं, दोस्तों के ये साथ करना वीडियो, होगा। ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा ना, अगर अगर आगे वायरल होता है तो मेरा इतना कोड वायरल हो सकता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वो सब चीजों में मत जाओ भाई, अपने टैलेंट में जाओ। वायरल चलिए, तो जी ठीक चीजें जी होती है, जी। स्टार्ट रहेगी। करिए आप। हम लोग भी आपके देखें फिर कला। स्टार्ट करिए। ठीक है, इसमें अभी यूट्यूब आए से हैं स्टार्ट रोशनी करेंगे। मैडम। ठीक है, रोशनी मैडम का तो पॉज हो गया था, रोशनी मैडम का पॉज हो गया था, मुझे लगा 1.5 GB खत्म हो गया आज का, इसलिए मैंने भी कुछ ज्यादा ध्यान दिया नहीं। Oh my फिर से God। रोशनी मैडम ने शायद हॉटस्पॉट लिया है अभी। रोशनी मैडम ने, कैसे हो रोशनी मैडम? ऑडियो, उन्होंने म्यूट कर रखा है। रोशनी ऑडियो म्यूट है क्या? नहीं नहीं मैम, आवाज आ रही है। आ रही है। ओके। मैम कैसे हो, आप कहाँ म्यूट से करने हो? से भी हमारी आवाज आपको आएगी। यस, मेरी आवाज नहीं आएगी। आप कहाँ पर रहते हो मैम? बताओ, हमारे बंदे वहां पर आ जाएंगे, आपका इंफॉर्मेशन चाहिए सिर्फ। मैं दिल्ली में रहती कहाँ से हो मैडम आप? रोशनी हूँ। दिल्ली में रहती है, दिल्ली से है वो। अरे वाह, अच्छा मैम को अच्छा, पता बढ़िया है। बढ़िया है। चलो चलो चलो, थैंक एक्चुअली यू। उसका नेचर थोड़ा शाई है, है ना। तो वो थोड़ा कभी बोलेगी। हाँ, ये बेटर है कि आप रोशनी अपने। मैम पहले वाले वीडियोस में भी थे ना, हाँ 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 हाँ। हाँ। ऑल ज्ञान के पहले वीडियोस में भी थे ना रोशनी मैम, तो अच्छा आपने है। लगता है पूरा आपकी सर्च वजह कर से लिया और क्या। यूथ अट्रैक्ट, मयूर जी ने पूरा सर्च कर लिया और रोशनी क्या मैम बोलूं। और किरण मैडम और रोशनी मैडम की वजह से तो यूथ आ रहा है यूट्यूब पे आपके ऑल ज्ञान वर्चुअल को देखने के लिए। अच्छा। चलो। हाँ, आनंद जी कैसे हो? नाइस टी शर्ट आनंद सर। हाँ, आपके लिए ये पहना है मैंने। बस मेरे को सब्सक्राइब ऐसे पता देख था के आप कर व्हाइट सकते पहनने हैं। वाले, तो इसलिए मैंने भी वही पहना। जोक्स अपार्ट, इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप पर्सनल कमेंट ना करें किसी को। आप प्लीज अपना स्टार्ट करें प्लीज। इट्स माय पर्सनल चलो रिक्वेस्ट। चलो, यस यस। चलो, ऑलगैन का टी शर्ट है, जिसका अच्छा होगा आनंद सर जी कुरियर कर देंगे उसको टी शर्ट। हाँ, बेशक बेशक। श्योर श्योर।
चलो चलो बढ़िया था। पहले के देखे मैंने शोज, आज कुछ इतना ज्यादा प्रिपरेशन नहीं किया। एक्चुअली संडे के दिन कैसा जॉब वगैरह रहता है तो बेड से उठता ही नहीं हूँ, पर जल्दी उठ गया, नहाया वगैरह, परफेक्ट परफ्यूम वगैरह मारा। परफ्यूम मारने के बाद मुझे याद आया कि वर्चुअल माइक है, इसमें तो स्मेल जाने वाला नहीं है। अच्छा। मैंने आपके ये लिए अच्छा रहा। 100 MB 100 MB बचा के रखा है। मेरे पास 3 सिम कार्ड है, तीनों के मैंने 1.5 1.5 GB आज के खत्म कर दिए है, सिर्फ अपने ऑल ज्ञान वर्चुअल के लिए 100 MB बचा के रखे थे, और फाइनली वो काम पे आ रहे हैं। अच्छी बात है, ये भी ह्यूमर अच्छा लगा। चलो बढ़िया है, कुछ नहीं, चलो बस इतना है। बाकी का आगे का बाकी को ये देते हैं, फिर बाद में बीच में और एंड में फिर से अपना कंटिन्यू करता हूँ। जी ठीक आनंद है मयूर सर, भाई, किरण ठीक है। मैम, थैंक यू। Okay, अरे okay. थैंक यू बहुत बेहतरीन। ओके ओके। Um, okay, Pratik, do you want to perform? Yeah, ma'am, sure. Okay, please. ये तो कुछ कहानी लिखी है मैंने, आपको स्टोरी बताना चाहूंगा। ओके। ये ये कहानी ना कुछ ठीक ना 8 साल पुरानी है आज से। हमें ऑडिबल ना? Yes. हाँ हाँ। या जी ओके। प्रतीक तो जी। कहानी ना ये कुछ ठीक से ना 8 साल पुरानी है। मतलब जब हम स्कूल में हुआ करते थे, बहुत शरारत करते थे, मतलब किसी की तो सुननी ही नहीं, पढ़ाई तो दूर की बात। तो फिर उस वजह से ऐसा कुछ हो गया था कि पेरेंट्स ने ना हमें ट्यूशन में भेज दिया। स्कूल में तो बंदा कुछ करेगा नहीं, तो चलो ना इसको ट्यूशन में भेज देते। तो वही कुछ कहा है कि अब स्कूल में तो पढ़ाई होती नहीं थी, तो मैंने भी सोच लिया ना कि चलो ना कुछ तूफानी करूँ। फिर मैंने भी फिर एक कदम उठा लिया और सोचा कि चलो भाई ट्यूशन ज्वाइन कर लेता हूँ। अब हुआ कुछ ऐसा कि मुझे लगा कि ज्ञान का पिटारा ना मेरे मन में भरने वाला था। मगर मुझे क्या, शायद किसी भी नहीं पता था कि मेरी शादी का मंडप भी शायद यही सजने वाला था। तो कैसे ट्यूशन का टाइम कुछ रहता था ना मेरा 2:30, और स्कूल से छूट के मैं आता था 1:45 तक। तो था कुछ ऐसा कि तो भी ज्यादा टाइम नहीं मिलता था, और कैसे था कि पहला ही दिन था ना, इसलिए मुझे लेट नहीं होना था। तो बस मैंने उठाया बैग और मैं भागते भागते पहुंच गया। तो मतलब कुछ ऐसा हुआ कि मैं जो सपनों में जो इमेजिन करता था ना, वो शायद ना तब हकीकत में हुआ मेरे साथ। कि तब जाके ना मेरी नजर ना वो एक हसीन से चेहरे पर पड़ी, और मानो जैसे ना दिल में ना कुछ हलचल सी मचने लगी। क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं। लेकिन तभी ना किस्मत ने भी ना मेरा साथ भी कुछ ऐसा दिया कि ट्यूशन टीचर ने भी ठीक ना मुझे उसी के सामने दिया, ठीक उसी के सामने बिठा दिया। तो मैंने कहा भाई सही है भाई, भगवान को हर रोज दुआ करता रहा, आज भाई अपनी दुआ सेट हो गई, अपनी लाइफ सेट हो गई, बोले ठीक है सब अच्छा चल रहा है। अब बुक तो लेके बैठ गए, बोले सोचा आगे करूँ क्या। तो चुपके से ना मैंने ना साला बुक नीचे कर दी थोड़ी, और उसकी ना बस ना मुझे सिर्फ आंखें दिख रही थी। तो फिर इसने फिर आंखों से आंखें ना मेरी उससे ना मिलती ही जा रही थी, और दिल में ना मेरे उसके लिए ना जगह ना बहुत बढ़ती जा रही थी। तो फिर मैंने एक दिन ना डिसाइड कर लिया और सोचा कि चलो ना ट्यूशन छूटने के बाद ना मैं खुद जाके ना उससे बात कर लूं। मगर मेरे ना कुछ उसने बोलने से पहले ही उसने मुझे सामने से कहा, यार दोस्ती करोगे क्या मुझसे। बोला भगवान कहाँ थे आप इतनी देर। तब वो जो स्माइल थी ना मेरे चेहरे पर ना कुछ ऐसी झलक रही थी, मानो जैसे गुलाब की पंखुड़ियां ऊपर से गिर रही थी। ट्यूशन छूटने के बाद ना रुकना मानो जैसी मेरी आदत सी बन चुकी थी। अब तक तो मैं रुकता रहा, अब तक तो मैं रुकता रहा, मगर थोड़े दिनों बाद वो भी मेरे लिए रुकने लगी थी। तब मुझे पता चला कि हाँ, टू साइडेड है। तो उसकी नजाकत का ना मेरे दिल पर भी कुछ ऐसा जादू छाने लगा ना कि वो चांद भी ना बादलों के पीछे छुपकर शर्माया। वो रुस्ती, मैं मनाता था। वो रोती ना तो मैं उससे पागलों की तरह ना हंसाता था।
वो रुस्ती, मैं मनाता था, वो रोती तो मैं उसे पागलों की तरह हंसाता था। बचपना कुछ कम नहीं था उसमें, इसलिए शरारत वो करती और डांट मैं खाता था। वो बिल्कुल ना उस बारिश की बूंदों की तरह थी, मतलब जो ना हर वक्त मुझे ना बहुत सुकून दिलाती थी। अब हो रहा ऐसा था कि सवाल तो मेरे भी मन में बहुत थे, मगर मैं वो ना मन ही मन कहते जा रहा था, मैं कुछ बयान नहीं कर पा रहा था। और वो थी कि मतलब सवाल पे सवाल ना वो पूछे जा रही थी, सवाल पे सवाल ना वो पूछे जा रही थी, और जवाब पे जवाब ना मैं देता जा रहा था। मगर मेरे मन में छुपा हुआ वो एक सवाल, बस वो एक सवाल ना, शायद मैं उसे पूछ नहीं पा रहा था। और मैं भी कब तक ऐसे फीलिंग्स को छुपा था, कभी ना कभी तो उसे मेरे लफ्ज़ों से बयां करना ही था। तो फिर एक दिन था, क्या संडे था, फिर संडे को ना छुट्टी थी। अब स्कूल में गया तो कहा कि अब फोन तो मेरे पास है नहीं, तो मम्मी का फोन उठाया, उसको कॉल किया। उसने कहा कि हम जहाँ पहले मिले थे वहां मिलने आ जा, और दोबारा इस नंबर पे ना फोन मत करना। और मैंने ना कट कर दिया। तो फिर वो सामने से ना चल के आ रही थी, तो उसे शायद समझ गया कि मैं क्या कहना चाहता था। और मैं भी ना थोड़ा सा बहुत शर्मा गया था, थोड़ा ना नर्वस फील कर रहा था तभी। तो मेरे कुछ बोलने से पहले ही ना उसने कहा कि प्यार करते हो ना मुझसे। मैंने कहा भाई, पर ही बता हो गया। मैं कहा भाई भगवान, आपने तो बहुत जादू कर दिया। और मन ही मन ना मैं बहुत मुस्कुराने लगा। वो जैसे जैसे ना मेरे पास आ रही थी ना, वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज होती जा रही थी। एक कदम आई, दिल धड़कने लगा, और थोड़ी पास आई और दिल धड़कता रहा, और पास आई धड़कता रहा। और वो अपनी एकदम मधुर सी आवाज में ना मेरे कान में आके गुनगुनाती है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स यार, हम ना दोस्त ही अच्छे लगते हैं। तो मैं क्या करूं, बोला वाह। और ऐसे ही कुछ ना उसने हैशटैग बेस्ट फ्रेंड का ना टैग मेरे माथे पे चिपका दिया, और ना मुझे फ्रेंड जोन करके ना वहां से वो चली गई। मैं उसे देखता रहा कि उसको अब बुलाओ, उसको अब बुलाओ, उसको रोकू नहीं, मतलब मैं उसे कुछ सोच रहा, कुछ सोचूं नहीं सोचूं क्या, कुछ ब्लैकआउट हो गया था मैं अचानक सा। कुछ सोच नहीं रहा था मैं क्या करूं। कि मतलब ऐसा हुआ कि मैं शादी करने को बैठा और कोई मेरे सामने से ना मेरी दुल्हन को भगा के लेके गया हो, और मैं उसे बस ना ये, बस ऐसे मुंह ऊपर करके देखता रहा। भाई मैंने सोचा चलो जाने दो, क्या प्यार है, एक गई तो दूसरी आएगी भाई, दूसरी गई तो तीसरी आएगी, प्यार तो क्या होना ही रहेगा, होता ही रहेगा। और ऐसे ही ना कुछ हुआ था मेरे इस कहानी का दिए। थैंक यू। हाँ प्रदीप जी, पहली बात तो बहुत अच्छी कहानी थी, आपकी आवाज बहुत मधुर है, पहली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। थैंक यू सर। बहुत अच्छी आवाज है आपकी। तो और सर आपकी जो आपको भी थैंक यू सिचुएशन बोलना थी, चाहूंगा, किरण मैम को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा कि थैंक आपने यू। मौका दिया मुझे। फर्स्ट हाँ एवर ये है ये करता मेरा ओपन माइक इवेंट। अब इससे अब और बेहतर आप जुड़े हमसे और बेहतर करते जाएं, हम यही आशा करेंगे आपसे। जी सर जरूर जरूर और सर। ये आपकी जो सिचुएशन थी उस पे एक मैं अपनी कविता आपको सुना देता हूँ, जो आप जो सिचुएशन कहानी में पिरोया है आपने उसमें, कि तुमसे मिलने से पहले मैं न था, तुम न थी। तुमसे मिलने से पहले मैं था, तुम थी। माय मिस्टेक। तुमसे मिलने से पहले मैं था, तुम थी। फिर मैं और तुम हम हुए, फिर मैं ना रहा, तुम ना रहे। वाओ। मस्त सर मस्त सर। और प्यार तो भैया, प्यार का पहला शब्द ही अधूरा है, तो कुछ प्यार इश्क तो अधूरे रह ही मैं जाएंगे। आनंद जी, आपने आप वो एक 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 पुराने शायर की चार पंक्ति है जो आप अभी सुना रहे थे, वो कुछ इसी तरीके से थी कि इस चिलमन से वो झांके, इस चिलमन से मैं झांकू, उस चिलमन से वो झांके। हाँ चिलमन बेसिकली मतलब खिड़की हो गया, आपका दरवाजा, उसके लिए यूज किया हाँ जाता है कि जी जी हाँ। इस चिलमन से मैं झांकू, उस चिलमन से वो झांके, लगा दो आग साला चिलमन को, ना वो झांके ना मैं झांके। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब ओके, रोशनी तुम परफॉर्म करना चाहोगी? यस रोशनी। यस मैम। यस प्लीज परफॉर्म। खता तो जब हो कि हम हाल दिल
किसी से कहें, खता तो जब हो कि हम हाल दिल किसी से कहें, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। अमीर तू है, अमीर तू है तो इतना जरा बता दे मुझे, गरीब मैं हूँ मगर इसमें मेरी खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। तुझे भी प्यार है, मुझे भी प्यार है, मैं जानती हूँ सनम, ये बात और है कि मुझसे कभी कहा तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, खता तो जब हो कि हम हाल दिल किसी से कहें, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। बस थैंक वेरी नाइस, बहुत अच्छा गीत है। बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा है रोशनी। नाइस नाइस नाइस। गजब, बहुत ओके, अच्छा। रोशनी बहुत ही अच्छा गाना गाती है। यू मैम। ओके ओके, अमित आप परफॉर्म करना चाहोगे? जी जी बिल्कुल मैम। ओके, आज सॉन्ग नहीं, मैं अपनी एक रचना सुनाना चाहूंगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। प्लीज। ये मैंने अपने फौजी भाइयों को समर्पित किया है। इसका शीर्षक है एक फौजी की आत्मकथा। इसकी शुरुआत वहां से होती है जब वो वॉर जोन में लड़ाई कर रहा होता है। इसको वहां से शुरू किया मैंने। रक्त रंजित थी धरा और रक्तमय आकाश था, माँ पिता और भाई बंधु नहीं कोई पास था। माँ के आंचल सी सुगंधित बह रही थी वो हवा, भारती का शस्त्र बन लड़ जाऊं ये विश्वास था। जल रहा था क्रोध से और हृदय में आक्रोश था, शत्रु से लड़ता हुआ हुंकार करता जोश था। चल रही थी गोलियां हर रंग लहू में लाल था, मार कर 100 को मरूंगा यह मेरा ऐलान था। आहुति मैं दे रहा था माँ धरा को भक्त सा, मेरे हाथों कर रहे थे रुद्र सेवन रक्त का। गोलियों के शोर में भी गूंजती थी गर्जना, तन भले मानुष मगर ये रूप था वनराज का। केसरी संध्या में था मैं केसरी सा घूमता, शत्रु की हर मृत्यु पर मैं मातृभूमि चूमता। फिर कहीं से एक गोली मेरे सीने पर लगी, फिर कहीं से एक गोली मेरे सीने पर लगी। लड़खड़ाए पैर लेकिन आग तन मन में लगी, जल उठा प्रतिशोध से मैं रक्त अग्नि सी जगी। थी धधकने श्वास और बाहें फड़कने सी लगी, लुप्त होती प्राणवायु गर्जना कर फिर जगी। छूटते थे श्वास फिर भी क्रोध की ज्वाला जगी। शत्रुओं का काल था पर काल के था द्वार पर, शत्रुओं का काल था पर काल के था द्वार पर। तन मेरा घायल मगर था मन प्रतिज्ञा में प्रखर, रक्त सारा बह गया था धमनियों से सूख कर। लग रहा जैसे रखा हो भार कोई शीश पर, छा रहा सम्मुख अंधेरा आंख होते बंद थे। अंग मेरे शुष्क पत्तों से हवा में तैरते, पीर देते रक्त बिंदु वीरता के चिन्ह थे। शत्रु भी रुक से गए मेरी शहादत देखते। जब गिरा मैं भूमि पर, जब गिरा मैं भूमि पर यूं लगा माँ की गोद है। चूमती माँ शीश मेरा छूटता प्रतिशोध है। मृत्यु भी करती तिलक जाने ये कैसा योग है,
मन प्रफुल्लित हो रहा, किंचित नहीं अब क्रोध है। इसके बाद सैनिक की मृत्यु हो जाती है, उसके शरीर को तिरंगे में लपेटकर उसके घर लाया जाता है। उसके बाद ही कुछ पंक्तियां, यार मेरे रो रहे हैं सोच जैसे हो गया, यार मेरे रो रहे हैं सोच जैसे हो गया, आज उनका यार इतना बड़ा कैसे हो गया, घूमता जो संग उनके रास्ते गलियारों में, वह उन्हीं के माथे का सरताज कैसे हो गया। हंस पड़ा भाई, हंस पड़ा भाई, कहा अब उठो भैया बस करो, क्या रुलाओगे अब यह खेल ना नीरस करो, ना लड़ूंगा अब कभी तुमसे मेरा वादा रहा, उठो लग जाओ गले अब मुझे ना बेबस करो। बहन उसको कह पड़ी ओ मूर्ख तू क्यों रो रहा, बहन उसको कह पड़ी ओ मूर्ख तू क्यों रो रहा, नींद पूरी ना हुई है तभी भैया सो रहा, कल है राखी आज भैया इसलिए तो आया है, हाल देखो सजाती हूँ वक्त भी तो हो रहा। वो खड़ी है प्रीत मेरी रीत सारे तोड़कर, वो खड़ी है प्रीत मेरी रीत सारे तोड़कर, पूछती है क्यों चले हो मित से मुख मोड़कर, इस बरस था ब्याह क्या दुल्हन बनाने आए हो, इस बरस था ब्याह क्या दुल्हन बनाने आए हो, लो उठो तैयार हूं मैं लाज अपनी छोड़। रो पड़ी है माँ मेरी मेरा जो माथा चूम कर, बह पड़ी है आंसुओं की धार यह कैसी मुखर, चाहता हूं खुद से लिपटे तिरंगे से पोंछ दूं, चाहता हूं खुद से लिपटे तिरंगे से पोंछ दूं, जो मेरे मृतदेह पर पड़ती है देखो इस कदर। पिता मेरे मूक हैं, पिता मेरे मूक हैं, सैलाब अपना रोक कर, यज्ञ में औलाद अपनी झोंक कर, मन ही मन में तौलते हैं क्या मिला क्या खो गया, गर्व बढ़ जा रहा मेरी शहादत सोचकर। मृत पड़ी थी यूं मेरी जो देह माटी ढेर की, मिन्नतें की इश्क से दो मोहलतें कुछ देर की, वो शीशे की उठ पड़ूं लग जाऊं, एक पल का हर्ष दे मर जाऊं फिर से ही। ना जगी पर चेतना, म्यूट कर ना ले। जगी पर चेतना, वह देह मिट्टी थी बनी, चले सब लेकर उसे शमशान तक थी सनसनी। आ गया है सपूत माँ का घटाएं भी रो रही, जिस धरा से था बना अब देह उसकी हो रही। चल पड़ी 21 बंदूकें हवा में फिर वही, उठी लपटे आसमां तक प्रार्थना सी कर रही। बस गया सबके दिलों में आज सब फल हो गया, हो गई मृत्यु सफल जीवन सफल ही हो गया, हो गई मृत्यु सफल जीवन सफल ही हो गया, जीवन सफल ही हो गया। शुक्रिया। क्या बात है अमित, क्या बात है। बहुत उत्तम अमित भाई। वन यार, नाइस वन। इससे पहले आपका जो गाने वाला परफॉर्मेंस था वो भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया। वतन से कुछ ज्यादा ही इमोशनली अटैच्ड है। वो तो हूँ मैं, अब मैं बहुत चीजों पे लिखता हूँ, लेकिन अभी तो थोड़ा मन उसी पे मन हो रहा था। नहीं, मेरे को रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुना है आपने? जी बिल्कुल, उनको पढ़ता हूँ। हाँ, उनकी तरह आपको अच्छा लगा थोड़े से, आप धीरे धीरे, बहुत अच्छा, बेहतरीन। अमित भाई की आनंद जी अगर इजाजत हो, अमित भाई की पंक्तियां सुनकर मुझे 4 पंक्तियां याद आ गई जो मैंने भी फौजी भाइयों पे लिखी थी। हाँ, आपको मिलेगा थोड़ा सा, अभी ना लाइन में और भी लोग बंदे हैं तो उनको फिर करवा लेते, फिर आपको हम लास्ट में। अभी है क्या अभी और? प्लीज हाँ, प्लीज, अगर है अभी तो प्लीज कंटिन्यू। हाँ, इसी वजह से ना। ओके उमे। या हाय किरण। हाय उमे। एक पोएम है जो मैंने मतलब मॉनसून पे लिखी है, क्योंकि मॉनसून का सीजन है तो सोचा कि कहीं पढ़ दूं। The much awaited monsoon, the much awaited first drizzle of the year, and the petrichor so divine, putting away hot flames emanating from the earth, enhancing greenery of the now remaining trees which survived the forest fires and sacrificed their lives to adorn our living rooms. Shining droplets of water dripping from the leaves reflect the aura of pearls just derived from their shells. I waited long for this moment. Now that it has arrived, I wish to get absorbed into it. I run to the terrace, my hands outstretched, drinking in the droplets, romancing the cool breeze.
The rain first penetrating the different layers of my skin, then my muscles and my bones, finally soaking my heart with the colors of the rainbow it paints on the color deprived canvas of the sky. The cloud drained off every single drop of water. The same drops now dripping from my hair, I move towards the balcony and see fountains of water erupting from the terraces onto the road, hidden beneath the newly formed murky stream, carrying with it heaps of garbage neglected by the authorities, strewing it all through the length of the street. In a day or two, these would become breeding grounds for mosquitoes, leading to viral fevers under which the city would reel for months. Meanwhile, in another 2 months, the city would also reel under the shortage of drinking water, having failed miserably in harvesting the water sent down from the heavens and letting it go all down the drain. वो ये था, मतलब ये जो रियलिटी है ना, मतलब हम अगर बारिश नहीं हो रही होती हो तो हम बोलते हैं कि बारिश नहीं हो रही, मतलब बहुत ही पॉल्यूशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमने अपने बारिशों को खत्म कर लिया है, ऐसे करके हम मतलब गवर्नमेंट को इसको उसको कोसते रहते हैं। लेकिन जब बारिश होती है तो उसका पानी हम हार्वेस्ट, मतलब इतना केयर नहीं लेते हम कि कम से कम जो पानी ऊपर से आ रहा है उसको बचा ले कि फ्यूचर में वो काम आएगा। जी, एक और मैं गजल पढ़ना चाह रही थी, इजाजत है? हाँ, इरशाद, हाँ इजाजत है जी। वैसे तो मैं उर्दू में बहुत कम लिखती हूँ, अभी ये कुछ मतलब तीसरा या चौथा पीसरा होगा मेरा उर्दू का भी जो मैं पढ़ना चाहती हूँ। न कोई राहबर अपना, न कोई हमसफर ही है। राहबर यानी कि गाइड, हमसफर तो आप सब जानते हैं। न कोई राहबर अपना, न कोई हमसफर ही है। अकेले थे जहां में हम, अकेले मर भी जाएंगे। तेरी चौखट पे ऐनादा पड़े हैं हम जमाने से, तेरे हर जुल्म पर जाना हम अपना सर झुकाएंगे। न जीने की ही ख्वाहिश है, न कोई जुस्तजू बाकी, तेरे गम में मिटे हैं एक दिन तुझको मिटाएंगे। तब ये एक रिजेक्टेड लवर जो होता है ना, उसकी लैमेंट है, ये लैमेंट ऑफ अ रिजेक्टेड लवर, ऐसा बोल सकते हैं। तलब है ऐसी महफिल की जहां बेगाने ही आते हों, कि बेगानों की महफिल को तेरे गम से सजाएंगे। बस एक ही इल्तिजा है तुझसे एक मजलूम दिलबर की, मेरे मरने पे जाना आप दो आंसू बहाएं। हो गया। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था आपका, शुक्रिया मैम। ओके, आते हैं कुछ हाँ जी आनंद भाई। हाँ, आप बोलना चाह रहे थे, स्टार्ट करिए। देखा वो जो अभी अमित भाई सुना रहे थे फौजी भाइयों पर, तो उसी पे कुछ पंक्तियां याद आई थी। तो अभी हमारे पास और नहीं है क्या आज कोई जो सुनाने वाले हैं? अभी है एक दो लोग, एक है कंटेस्टेंट हिमांशु, बट वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, आई डोंट नो। ओके, तो कुछ ऐसा था कि मतलब अनमोल रत्न है देश के सैनिक सपूत, कि अनमोल रत्न है देश के सैनिक सपूत, कहीं भी इनकी कोई कीमत नहीं। और न जाने कैसे भूल जाते हैं लोग शहीदों को, छोटी मोटी तो ये शहादत नहीं, कि छोटी मोटी तो ये शहादत नहीं। और आशा नहीं है फिर भी लिख लेते हैं प्यार मोहब्बत व्यंग्य की कविताएं, कि आशा नहीं है फिर भी लिख लेते हैं प्यार मोहब्बत व्यंग्य की कविताएं। वीरों की वीर गाथा का साहित्यिक गुणगान, मेरे अल्फाजों की ये हिम्मत नहीं, मेरे अल्फाजों की ये हिम्मत नहीं।
तो अमित भाई जो आपने लिखा है बहुत सुंदर है। फौजी जीवन को दर्शाना और उस पे कुछ लिख पाना, इमोशनल भावनाओं से भरा हुआ एक बहुत मतलब चैलेंजिंग काम है। बहुत सलाम आपको। आपका भी अच्छा था, बहुत अच्छा था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके अवनींद्र, कुछ बोलना है आपको अवनींद्र? हाँ, मैं हरीश भाई के बातों को आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने कहा था कि अभी इन्होंने एक कविता सुनाई थी, तो नजर और नजरिए के बारे में इन्होंने बताया था जी। तो उस पे रामायण तो सबने सुनी होगी, देखी होगी रामायण। उस पे एक मैं देखी है सर, सुनी नहीं है। अच्छा, आपके घरों में रामायण किताब नहीं है? पढ़ाते नहीं, सुनाते नहीं है घर वाले? नहीं, हमने स्कूलों में ही पढ़ी है, फिर स्कूलों में ही पढ़ी है। तो उस पे ही है, तो गाई उस पे भी ये है। कविता है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक नया एस्पेक्ट आपको प्रस्तुत करता हूँ, ठीक है? खुद की लड़ाई खुद से हो तो, खुद की लड़ाई खुद से हो तो, राम ही रावण, रावण ही राम हो तो। खुद की लड़ाई खुद से हो तो, राम ही रावण, रावण ही राम हो तो। न किसी को जाना पड़े बनवास, न किसी को जाना पड़े बनवास, न किसी को देश निकाला मिले। खुद की लड़ाई खुद से हो तो, न कोई सीता हरी जाए, न किसी को देनी पड़े अग्नि परीक्षा। खुद की लड़ाई खुद से हो तो, राम ही रावण, रावण ही राम हो तो। न पुत्रों को जान गंवाना पड़े, न पुत्रों को देना पड़े परिचय। खुद की लड़ाई खुद से हो तो, राम ही रावण, रावण ही राम। बहुत अच्छा आनंद है। खत्म कर। बहुत ही अच्छा था बहुत अवनींद्र। बहुत बढ़िया ख्याल था। आप लोग नया एस्पेक्ट था इसमें। आप लोग अगर रामायण देखे होंगे तो आप लोग, रावण भी बहुत कुछ चीजों में, बहुत ही चीजों में बहुत अच्छा था, आप ये जानते हैं। रावण तो बहुत बहुत बड़े ज्ञानी थे जी, वो तो बस एक घमंड मार गया ज्ञानी थोड़ा के भी बात है, और एक बहुत चीजें हैं। सीता को उसके हरण करके लाया, तभी उसने उनको छुआ तक नहीं। तो उसमें जो बस गुण वो थे, अवगुण थे, इंसान है जो, हाँ, इंसान में जो अवगुण गुण है, तो उसको उस नजरिए से मैंने, जो आपका नजर और नजरिए का था ना, वही देख जी जी उस पे जी मैंने। तो कैसा मेरा भी लगा आप यही लोग को सोचना बाल है ज्ञान कि में? हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। मेरा भी यही हाँ। सोच है। बिल्कुल अवनींद्र, बिल्कुल आपने सही बोला। ओके। किरण जी, हर क्या, और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होते। हाँ वो एक बहुत चलिए बड़ा हरीश मिथ भाई, है। आपने भी बहुत अच्छा प्रस्तुत किया। आप चाहेंगे कि अगले संडे को भी आप हमसे बहुत जुड़ेंगे, शुक्रिया। अमित भाई जी ने, जी जी बिल्कुल। और बेहतरीन, और किरण, अब आगे सबको आप। जी बिल्कुल। और कोई परफॉर्म करना चाहता है अभी? हिमांशु, मैं मैं आपसे परफॉर्म दोबारा करना पूछ रही चाहूंगा। हूँ। यस, हाँ जी, फाइनली स्पोक। आइए प्लीज हिमांशु। तो थोड़ा एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ पहले कि मतलब ऐसा होता है कि हम थोड़ा मतलब ज़्यादा उसके लिए लिखते हैं, जैसे औरतों वीडियो के लिए शेयर लिखते नहीं हैं, मतलब करोगे औरतों आप? को राइट्स नहीं मिलते, बट ये हाँ जी, वीडियो शेयर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, भूल गया था मैं, सॉरी। नो, इट्स ओके। हाँ, तो मैं कहता है जैसे मतलब कर रहे हैं कि मतलब ज्यादा ही औरतों के लिए लें, मतलब ठीक है, और राइट्स नहीं मिलते बोलना, बट ये भी है कि और आदमी के भी होते हैं जो लोग देखते नहीं है या देखकर इग्नोर देते हैं। तो एज अ मैन थोड़ा है उस पर ध्यान खींचना चाहूंगा। तो शीर्षक है आदमी का दुख। औरतों के लिए तो कितने संस्थान बने हैं, औरतों के लिए तो कितने संस्थान बने हैं, हम आदमी के लिए है कोई? सब औरतों का दुख देखते हैं, हम आदमियों का दुख देखता है कोई? हवा दिखती नहीं तो क्या जानते नहीं, हवा दिख नहीं तो क्या जानते नहीं, भगवान को कभी देख नहीं तो क्या उन्हें मानते नहीं, आंसू हमारे हैं फिर क्यों इन्हें पहचानते नहीं। इसको बॉयज ध्यान से सुने, इससे रिलेट करें। क्या क्यों ऐसा होता था कि जब भी स्कूल में रोता था तो दोस्त कहते थे लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है। अब मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, भाई मैं लड़कियों की तरह नहीं रो रहा, मैं लड़कों की तरह ही रो रहा हूँ। हमारा रोने का तरीका अलग है, वो चीख चीख कर रोती हैं, हम घुट घुट कर। यही तो परेशानी है लोगों की। अगर रो दें तो कहेंगे लड़की है क्या, अगर रो दें कहेंगे लड़की है क्या, अगर ना रोए तो कहेंगे लड़के बड़े तो रोते। हम दिखाते नहीं, अलग बात है, हम दिखाते नहीं वो अलग बात है, हम भी इंसान हैं, हमारे भी जज्बे हैं। दर्द छुपाने की काबिलियत जानी है भगवान ने,
तो इसका मतलब ये तो नहीं कि दर्द हो ही नहीं हमें। और एक बात बताओ, दुनिया में औरतों से ज्यादा आदमी आत्महत्या करते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? बड़ा सीधा सा जवाब है, दबाव, परेशानी, बोझ। जब वो स्कूल एज में होते हैं तब उसे बता दिया जाता है कि बहनें तो चले जाने अपने ससुराल, और जो बीवी भी आएगी वो भी घर का काम देखेगी, इसलिए अब तू ही है जिसे कमाना है। और कमाने का साधन वही जॉब जो कभी मिलती नहीं, मिलती भी है तो कोई छोटी सी या बड़ी। देखते देखते शादी हो जाती है, फिर बीवी, बच्चे, बच्चों की ख्वाहिश, सॉरी, बीवी की ख्वाहिश, बच्चों की जिद, माँ बाप का इलाज, बॉस का गुस्सा, इतना सब कुछ कैसे सहेगा वो? मुंह से जिम्मेदारियों से कैसे कहेगा वो? फिर इन सबको सिर्फ एक बार में खत्म करने का वो तरीका अपना लेता है। एक बहुत बुरा वो कदम उठा लेता है, चला जाता है वो सब छोड़कर, सारे रिश्ते बंधन तोड़कर। ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर महिला को सजग किया जाता ताकि वो भी पुरुष का दुख बांट सके। वैसे अच्छा हुआ लोग अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस नहीं मना, क्योंकि पुरुष की उपलब्धियां इतनी ज्यादा हैं कि उन्हें एक दिन में नहीं गिना जा सकता। धन्यवाद। वेरी नाइस। यस अवनींद्र, आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, सब लोग को शुक्रिया, और लोग जुड़ रहे हैं, आप अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके लिए हम बहुत तहे दिल से आप लोग को शुक्रिया करते हैं। जो कुछ लोग छूट गए होंगे, और तुम्हारे हवाले करता हूँ, आगे बात करो। ओके, थैंक यू सो मच कि आप लोग सब आए, सबने अपने विचार दिए हमें। मैं भी यहीं से एंड करना चाह रही हूँ ओपन माइक। हमारा मेन मोटिव यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़े, हम ज्यादा से ज्यादा आर्टिस्ट से जुड़े, उनके विचारों को जाने। यही ओपन माइक, हमारे ऑल ज्ञान ओपन माइक का एम है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग allgyan.com में जरूर जाएंगे और वहाँ के ब्लॉग्स देखेंगे। वहाँ पे बहुत सारे ऑथर ने बहुत सारे विचार डाले हैं उसमें। और यस अवनींद्र, आप कुछ कहना चाहते हो कि उसमें क्या आप एडिशनल लेकर आ रहे हो ऑल ज्ञान में? अभी हम कविताओं की श्रृंखला लेके आ रहे हैं। उसमें जैसे हरीश भाई ने, अमित भाई ने अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी हैं, और हिमांशु अभी शुरुआत कर रहा है, और उमेरा मैम ने भी बहुत अच्छी पढ़ी है कविताएं। तो उसका फिर एक संग्रह हम लोग जल्दी ही ला रहे हैं। तो धीरे धीरे प्रोग्राम बढ़ता जा रहा है, उससे संग्रह लाएंगे तो फिर उसमें हम वो भी डालेंगे, छापेंगे, वो अलग से एक कॉलम लेके आएंगे। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करते रहिए हमें। जी, तो जैसा कि अवनींद्र ने बताया कि हम लोग लेकर आ रहे हैं कुछ नया चीज, उसमें भी ऑल ज्ञान में भी। बाकी आप जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें क्या है। और मैं आशा करूंगी कि आप नेक्स्ट संडे भी आएंगे और हमें ज्वाइन करेंगे। होपफुली हमने आप सबको एंटरटेन किया होगा। और आप लोगों ने तो हमें बहुत किया, बहुत एंटरटेन किया। बिल्कुल। किरण जी, तो अगले हफ्ते के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा या फिर आप डायरेक्ट लिंक भेज देंगे या कैसे? मैं आपको डायरेक्ट लिंक भेज दूंगी और एक दिन पहले भी इन्फॉर्म कर दूंगी आपको। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, सब लोग धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। थैंक यू आप सब, थैंक यू सो मच। सो मैं एंड कर रही हूँ ओपन माइक।